Let's start with question number 783. Question number 783. The point on the curve 3y equal to 6x minus 5x cube, the normal at which passes through origin. It means this is the given curve. Okay? And there is a normal to this curve at a certain point. और वो point कौन सा है वही हमें ढूंढना है. And that normal is passing through the origin. Okay? That normal is passing through the origin. Okay, so let us solve this. So let that point be x1, y1. हम ये point assume करते हैं कि जो हमें required point है ना, that is the required point. तो point हमेशा किस फॉर्म में होता है x, y. तो हम यहाँ पर लेंगे कि वो point है मान लीजिए x1, y1. So let required point be x1, y1. And therefore, now this particular point lies on the curve. This particular point lies on the curve. क्योंकि नॉर्मल इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि ये पॉइंट कहाँ पर है, इस कर्व पर है. So therefore, x1, y1 satisfies, है ना, satisfies equation of curve. तब यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 ले सकते हैं. So this implies what? ये हो गया इधर 3y1 is equal to 6x1 minus 5x1 cube. And now this is first equation in x1 and y1. See, there are two variables x1, y1. हमें दोनों की वैल्यू निकालना है. x1, y1 दोनों की वैल्यू निकालना है. तो इसका मतलब we should have minimum two equations. तो एक इक्वेशन तो ये हो गया क्योंकि ये पॉइंट जो है आपका इस कर्व पर लाई करता है, मतलब इस कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. तो हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ x1 and y1. So we'll get another equation in terms of x1 and y1 using derivatives. ठीक है, using derivatives. So differentiate given curve with respect to x. तो 3y का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 dy by dx is equal to 6x का 6 minus 5x cube, 5 3 जा 15x square. 3 से अगर आपने क्रॉस डिवाइड कर दिया तो dy by dx हो जाएगा 2 minus 3 to the 6, 3 5 the 15, 2 minus 5x square. ये हो जाएगा dy by dx. ठीक है, अब dy by dx हमें किस पॉइंट पर चाहिए, x1 y1. तब लेते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल उसे हम क्या बोलते हैं, m डैश, एंड इट इज नथिंग बट -1 अपॉन dy by dx at x1 y1. Slope of normal m dash is nothing but -1 upon dy by dx at x1 y1. So this is equal to -1 upon dy by dx क्या है, 2 minus 5x square. तो इसमें हमें x की जगह पर x1 लेना है, y की जगह पर y1 लेना है. y है क्या, नहीं है, तो फिर x की जगह पर x1 ले लीजिए. 2 minus 5x1 square. So that is nothing but slope of the normal. ठीक है, this is slope of the normal. So this is m dash, मतलब slope of normal. और पॉइंट कौन सा है, x1 y1. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम निकाल सकते हैं. So therefore इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, क्या होता है इक्वेशन, y minus y1 equal to m dash in bracket x minus x1. ये इक्वेशन होता है. और x1 y1 पॉइंट कौन सा है, हमारा पॉइंट भी x1 y1 ही है. So x1 y1 will remain as it is. हमें m dash की वैल्यू डालनी है. m dash है -1 upon 2 minus 5x1 square. So it means what, y minus y1 is equal to m dash, मतलब -1 upon 2 minus 5x1 square, ब्रैकेट में होगा x minus x1. ठीक, now this is the equation of the normal. This is the equation of the normal. अब किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है,
किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है कि इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. क्लियर? ax plus by plus c equal to 0. And this x and y represent what? It is a general point on the line. x1 y1 जो है जनरल पॉइंट नहीं है. x1 y1 is a particular point. आप बोलेंगे सर जनरल पॉइंट और पर्टिकुलर पॉइंट में क्या डिफरेंस? जस्ट एक यहाँ पर मैं मान लीजिए लाइन ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, दिस इज द लाइन. Now whenever I have to show any general point on the line, it is this general point on the line x comma y. Now this point x comma y satisfies or equation of the line at each and every point. Equation of line में हमेशा x comma y रहेगा. General point मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट 1, 2 होगा या फिर इधर ले लीजिए ये ओरिजिन से पास हो रही है मान लीजिए 0, 0 होगा. So these are particular points and this is general point. ठीक, these are particular points 1, 2, 0, 0, x1 y1 पर्टिकुलर पॉइंट. ये x1 y1 एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर आपने इस कर्व को नॉर्मल ड्रॉ किया. ये पर्टिकुलर पॉइंट हुआ. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे x1 y1 का कुछ वैल्यू होगी 2, 3 या ऑप्शन में है, ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू होगी. हम जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन किस में हो जाएगा पूरा x और y. So that x and y represents the general point on the line. So it becomes a equation of a line in the form ax plus by plus c equal to 0. और ये जब इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया एंड दिस पर्टिकुलर लाइन ये कहां से पास हो रही है बताइए? उसने दिया दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. So when we say this is passing through the origin, it means it satisfies this equation, satisfies the equation of the origin. और origin satisfies the equation of the line. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी? Since normal passes through origin, therefore what? Therefore origin मतलब 0, 0 satisfies equation of normal. Origin satisfies equation of normal. मतलब अभी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इसमें हम x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पर रख देंगे. So let us put y is equal to 0 minus y1 is equal to minus 1 upon 2 minus 5 x1 square in bracket 0 minus x1. ठीक है, तो हो जाएगा इधर माइनस y1 लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस y1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. माइनस y1 इंटू 2 माइनस 2y1 माइनस माइनस प्लस 5 x1 स्क्वायर y1 is equal to minus 1 into minus x1 that is plus x1. So we got this another equation in terms of this is another equation. That is the second equation हम इसे बोल सकते हैं. This is second equation. In terms of x1 and y1. x1 y1 में एक इक्वेशन हमारे पास हो गया, इधर भी एक इक्वेशन x1 y1 में. दोनों इक्वेशन को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे देन विल गेट वैल्यू ऑफ x1 y1. दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा. देन विल गेट वैल्यू ऑफ x1 एंड y1. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम y1 की वैल्यू भी डाल सकते हैं. ठीक है, y1 की वैल्यू हम यहाँ से इधर रख सकते हैं टू सो दैट वी कैन फाइंड आउट x1, या फिर हम x1 की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते तो y1 की वैल्यू पुट करेंगे. सो लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट इज y1. सो फ्रॉम 1 y1 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिया हमने तो 3 टू द 6 होता है. 2 x1 minus 5 by 3 x1 cube. And we'll use this value of y1 in equation 2. Now from 2
यहाँ पर अगर हमें y1 की वैल्यू यूज करना 2 + 5 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 + 5 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर है x1, तो y1 इक्वल टू व्हाट, x1 डिवाइडेड बाय 5 x1 स्क्वायर -2। यहाँ से हमने y1 की वैल्यू निकाल ली, 2 3 से डिवाइड कर, ये हो गई y1 का। फिर सेकंड इक्वेशन से भी हमने y1 की वैल्यू निकाल ली, y1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में -2 + 5 x1 स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर x1, तो ब्रैकेट हमने उधर डिवाइड कर दिया, तो ये भी वैल्यू y1 की, ये भी वैल्यू y1 की, दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर व्हाट y1 मतलब x1 डिवाइडेड बाय 5 x1 स्क्वायर -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है y1 की वैल्यू 2 x1 -5/3 x1 क्यूब, ठीक। अब इधर डिनोमिनेटर में 3 आया है, ठीक। या तो फिर हम किसी, अब इसको सॉल्व करके फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x1। अब x1 की वैल्यू मतलब इन चारों में से 1 2 3 4 वैल्यू देखिए 1 1/3 2 -1, इस टाइप में वैल्यू, चलिए सॉल्व कर। तो यहाँ पर x1 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा 2 -5/3 x1 स्क्वायर, ठीक। अब मैं x1 यहाँ पर कट कर लेता हूँ, x1 कट कर दिया हमने। अब हमने x1 कट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से जब हमने कट कर, नॉट इक्वल टू, चारों ऑप्शन देखेंगे भी 0। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई होगा, तो दो टर्म्स है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 10 x1 स्क्वायर, फिर माइनस 5 × 5 दैट इज 25/3 x1 स्क्वायर इट इज x1 रेज़ टू 4, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 -2 × 2 -4 माइनस to be x1 plus 4 will become 5, so therefore 1 plus 4 हो गया 5 is equal to, ये 10 x1 स्क्वायर और ये 10/3 x1 स्क्वायर, दोनों की एडिशन होगी, दोनों x1 स्क्वायर है ना, दोनों x1 स्क्वायर है, दोनों की एडिशन हो जाएगी, 10 + 10/3 30 + 10 दैट इज 40/3 x1 स्क्वायर और -25/3 x1 रेज़ टू 4 -25/3 x1 रेज़ टू 4, ठीक। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से हमने एलसीएम 3 ले लिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 हो गया 15, ठीक। इन दोनों में x1 स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा और 5 भी कॉमन निकलेगा, तो 5 हमने कॉमन निकाल लिया, x1 स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचता है 5 8 40 -5 5 25 x1 स्क्वायर, फिर सॉल्व करते हैं,
5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने x1 अगर यहाँ पर 0 नहीं है, x1 क्या 0 नहीं है, x1 स्क्वायर है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या बच गया, इक्वेशन 3 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर 8 माइनस 5 x1 स्क्वायर। अब यहाँ से हमें x1 की वैल्यू ढूंढनी है, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x1 फ्रॉम दिस। हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x1 फ्रॉम दिस, कैसे निकालेंगे बताइए इसके आगे। जितना सिंप्लीफाई करना था आपने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, पूरा आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इधर x1 स्क्वायर में इधर x1 स्क्वायर भी है। Okay, so the next question is the normals to the curve y is equal to x square minus x plus 1 drawn at points with axes are x1 0, x2 minus 1, x3 5 by 2. So we have drawn three normals to this curve. We have drawn three normals to this curve. ठीक है, तीन नॉर्मल आहे, एक नॉर्मल या पॉइंटला, दुसऱ्या पॉइंटला, तिसऱ्या पॉइंटला। आता तिघ ज्या नॉर्मल आहेत त्या कशा आहेत ते त्यांना ऑप्शन्स मध्ये दिलेले आहे. दॅट वी हॅव टू डिसाइड वेदर दे आर पॅरलल टू ईच अदर or pairwise perpendicular or concurrent or non-concurrent. That we have to check. So for that, let us first find out slope at all these 3 points of the normal. Slope of the normals. So y आपल्याला दिलेला आहे, त्याच्यावरून मी काढणार dy by dx, which is nothing but 2x minus 1. That is dy by dx. but 3 slope आहेत. So slope of normals, आता स्लोप ऑफ नॉर्मल्स काय असणार आहे, पहिला स्लोप म्हणजे m1 डॅश म्हणतो मी त्याला, x1 ला, x1 च्या ठिकाणी m1 डॅश तो असणार -1 अपॉन dy बाय dx ॲट x1 इक्वल टू 0 है ना, तो 2 into 0 that is 0 minus 1 which is equal to -1 upon -1 that is +1. then m2 डॅश जो असणार तो असणार -1 अपॉन m2 कुठे x2 इक्वल टू -1 ला, तो मी तर 2 into -2 म्हणजे -4 -1 so it is minus नाही येणार 1 upon 5 -1 upon 5. this is -1 upon -1 which is +1 -1 upon -5 that is 1 upon 5. आणि m3 डॅश तिसरा स्लोप काय असणार आहे, -1 अपॉन x ची व्हॅल्यू किती आहे 5/2 या ठिकाणी 2 into 5/2 so it is 5 -1 so it is -1/4. now these are the three slopes, आणि तिघ स्लोप्स वरून आपण लगेच सांगू शकतो की पॅरलल टू इच अदर तर नाहीच, कट झाला, पॅरलल टू इच अदर नाहीये, तर स्लोप त्यांच्या सारखे आले असते. पेअर वाईज परपेंडिक्युलर आहेत का, पेअर वाईज परपेंडिक्युलर म्हणजे काय, ही पहिली आणि दुसरी आणि तिसरी कुठेतरी परपेंडिक्युलरिटी मध्ये काय असतं, स्लोप्स आर निगेटिव्ह रेसिप्रोकल्स ऑफ इच अदर, आणि याच्यामध्ये तिघांमध्ये कुठेही आपल्याला निगेटिव्ह रेसिप्रोकलचं रिलेशन दिसत नाहीये, कुठेच निगेटिव्ह रेसिप्रोकलचं रिलेशन नाही. त्याच्यामुळे पेअर वाईज परपेंडिक्युलर हा ऑप्शन सुद्धा कट झाला. आता राहिलं काय, कॉन्करंट किंवा नॉन कॉन्करंट, आणि ते चेक करण्यासाठी मला इक्वेशन काढल्याशिवाय, ठीक आहे ना, या बघा हे जे दोघं ऑप्शन आहेत ना हे इथूनच चेक होऊन गेले असते, म्हणजे जर का इथं टू असते तर चेक होऊन गेलं असतं, पुढे सॉल्व्ह करायची गरज नसती पडली. पॅरलल परपेंडिक्युलर साठी इथून मला कन्क्लूड करता येतं, पण कॉन्करन्सी चेक करण्यासाठी मात्र मला इक्वेशनच लागेल. आणि इक्वेशन आता काढण्यासाठी स्लोप आहेतच आपल्याकडे,
पॉइंट सुद्धा लागते. पॉइंट कोणते आहेत ते आपण बघू. हा पहिला स्लोप आपण कधी काढलेला आहे, ज्यावेळेस एक्स ची व्हॅल्यू 0 आहे. वाय ची व्हॅल्यू किती असणार, वाय या कर्व वरून मिळेल. दिस पर्टिक्युलर पॉइंट, ऑल these 3 points lie on this curve. म्हटलं का नाही, ऍट पॉइंट्स विथ ऍप्सिसा, म्हणजे हे पॉइंट्स कुठे आहेत, हे पॉइंट्स या कर्व वर आहे. म्हणजे याचा अर्थ एक्स ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 0, -1, π/2 घेऊ शकतो. आणि ते घेतल्यानंतर मला तो पूर्ण पॉइंट मिळतो एक्स, वाय. आता एक्स ची व्हॅल्यू इथं पहिल्या केस मध्ये 0 आहे, दुसऱ्या केस मध्ये एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, -1, तिसऱ्या केस मध्ये एक्स ची व्हॅल्यू π/2. वाय ची व्हॅल्यू काय आहे, या इक्वेशन वरून मिळेल. एक्स ची व्हॅल्यू 0 घेतल्यानंतर 0 - 0 +1 म्हणजे झाला +1. एक्स ची व्हॅल्यू -1 घेतल्यानंतर -1 चा स्क्वेअर +1 मायनस परत -1 म्हणजे +1 आणि +1 म्हणजे झाला 3. इकडे एक्स ची व्हॅल्यू 5/2 घेतल्यानंतर 5/2 चा स्क्वेअर 25/4 मायनस 5/2 +1. 4 is the LCM. 25 minus 2 to the 4, 5 to the 10. This is 4. 25 4 29 वजा 10 19 भागिले 4. 3 पॉइंट झाले. मग तिघांचे इक्वेशन लाईन 1 चे इक्वेशन काय असेल, y minus y1 म्हणजे 1 इक्वल टू m डॅश म्हणजे 1 इन ब्रॅकेट x minus x1 म्हणजे 0. सो फर्स्ट इक्वेशन मला मिळते y minus 1 इक्वल टू x, किंवा आपण त्याला लिहू शकतो x minus y इक्वल टू -1. दॅट इज फर्स्ट इक्वेशन. ठीक आहे, किंवा तुम्ही ठीक. चल आता हे झालं फर्स्ट. देन सेकंड इक्वेशन लाईन 2 साठी अगेन y minus y1 म्हणजे 3 इज इक्वल टू m आहे 1/5. x minus x1 म्हणजे -1 मायनस मायनस होणार +1. 5 इकडे मल्टिप्लाय करतो 5y minus 3 5 15 इक्वल टू x plus 1. So it becomes x minus 5y minus 15 तिकडे गेला तर -14 इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन. कॉन्करन्सी मध्ये डिटर्मिनंट वरून आपण चेक करतो, म्हणून इथे सुद्धा तुम्ही या -1 ला इकडे घेऊन द्या, म्हणजे तुम्ही असं लिहू शकता x minus y plus 1 इक्वल टू 0. कॉन्करन्सी मध्ये युजिंग डिटर्मिनंट वी कॅन चेक कॉन्करन्सी. L3 तिसरी लाईन y minus y1 म्हणजे 19 भागिले 4. स्लोप -1/4. x minus x1 म्हणजे 5/2. इथं 4 LCM घेतला त्याच्यासोबत कट केला तर इथं होणार 4y minus 19. इथला 4 कट झाला, मायनस मध्ये मल्टिप्लाय झाला -x प्लस 5/2. दोघं इकडे घेऊन येतो. It will become x plus 4y minus 19 minus 5/2 इक्वल टू 0. 2 ने क्रॉस मल्टिप्लाय करतो 2x प्लस 8y. 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर इथं होणार 38 आणि हा 5 म्हणजे 43 अपॉन 2 ची गरज नाही. 38 plus 5 43. And now we'll check the determinant for concurrency. कॉन्करन्सी कशावरून चेक करतात, डिटर्मिनंट. पहिला आहे 1 - 1 1